یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا, زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت کیا ہے اور اس کا پیار نرالا ہے. اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں ایک خوبصورت موقع دیا ہے اور بڑا ہی خاص دن ہے کہ ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں. اور لکھا کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ کسی مقصد کے تحت رکھا ہے. اور سنیے گا, یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں نا, یہ زندگی نہیں ہے. سنیں میری بات, غور سے سنیں. یہ جو ہم بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے. اصل زندگی یسوع مسیح کے ساتھ ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل زندگی کاروبار کرنا, بزنس کرنا, رشتہ داروں کو ملنا, شادی پہ جانا, منگنی پہ جانا, حقیقے پہ جانا, لوگوں کے بارے میں سوچنا یا اپنی جسمانی زندگی کو جاری رکھنا. سنیے, جسمانی زندگی, غور سے سنیں میری بات, جسمانی زندگی میں آپ کو بتاؤں یہ اصل زندگی نہیں. اصل زندگی یسوع کے ساتھ وقت گزارنا ہے. آمین, آمین. تو ہم خدا کی شکر گزار ہیں اس کی نعمتوں کے لیے, بخششوں کے لیے, احسانات کے لیے. تو آج ہم ایک چھوٹی بچی جس کو مقدسہ مریم کہتے ہیں, اور جب یسوع مسیح پیدا ہوا اس کی کتنی عمر تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں, کسی نے کبھی سنا ہو؟ ہاں جی, ایک منٹ ذرا پاسٹر صاحب, ایک منٹ. جی اچھا ٹھیک. سنیے, جوئس اسکالر کہتے ہیں کہ جب اس نے یسوع مسیح کو جنم دیا, غور سے سنیں, جو جوئس اسکالر ہیں, جو یہودی عالم ہیں, ہسٹورین ہیں جو جوئس, وہ کہتے ہیں, ہم پہلے حوالہ پڑھتے ہیں پھر اس کی طرف آئیں گے. شاباش, پہلے بائبل کو ہم سٹڈی کرتے ہیں. تو سنیے گا, لوکا رسول کی انجیل اس کا آج بڑا خاص, آج ہم دیکھیں گے مقدسہ مریم کا کردار یسوع کی پیدائش میں. آج آپ نے یہ بڑا کم سنا ہوگا, لیکن میں آج مقدسہ مریم کے کردار پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے کردار کو ہم پڑھیں. اس کا کرسمس میں کیا کردار ہے؟ کتنے لوگ آج سننا چاہتے ہیں؟ شاباش. اور یہ بڑا خاص مضمون ہے اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو آج بیان کروں. تو سنیے اس بات کو. لوکا رسول کی انجیل پہلا باب ہے, اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے, چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا, جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی. شاباش. آگے سنیے, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. مل کے بولیے, اس کنواری کا نام. آج میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم جو مضمون ہے بڑا خاص مضمون ہے, بڑا ہی خاص مضمون ہے مقدسہ مریم کی کرسمس میں ویلیو. دا امپورٹنس آف میری ان دا کرسمس. کیا میں نے بولا؟ سارے بولیے, مقدسہ مریم کی کرسمس میں کیا ویلیو کیا ہے؟ سنیے گا. اور آگے لکھا, اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا, خداوند تیرے
साथ है। आगे सुनिए, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। क्या हुआ? बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ, सारे बोलिए, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर, सारे बोलिए, ऊंची बोलिए, बोलिए, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ। इकतीस, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद तक तुझे, आगे सुनिए, और वो यकूब के गिराने पर अबा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आगे मरियम अपनी कंडीशन बयान करती है। शी एक्सप्लेन हर कंडीशन टू द एंजल से क्या कहती है। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को, सारे बोलिए, जबकि मैं, सुनिए इस बात को, क्रिसमस खुशियों का मौका है, खुशी और उम्मीद का मौका है। क्या है? उम्मीद का मौका है, और खुदा की मोहब्बत का ये मौसम है। और क्रिसमस में मुकस्सा मरियम का क्या कैरेक्टर है? What is the real character of मुकस्सा मरियम? मुकस्सा मरियम का खुदा के मंसूबे पर ईमान लाना। सुनिए, मैंने क्या बोला? मुकस्सा मरियम का खुदा के मंसूबे पर ईमान लाना। कलामे खुदा में लिखा है कि नासरत गांव की एक कुंवारी जिसका नाम मुकस्सा मरियम था, जिसका नाम सेंट मैरी था। और सुनिएगा, यहूदी स्कॉलर कहते हैं कि जब फरिश्ता जब्राइल उसके पास आया, उस वक्त उसकी एज 14 साल की थी। और सुनिए, एक कुंवारी 14 साल की बच्ची, और जो अभी तक इस बात से, गौर से सुनिए, ना वाकिफ थी कि क्या होने वाला है, खुदा ने उसको चुना। खुदा ने उस छोटी बच्ची को जिसका नाम मरियम था, उसको चुना गया, और उसने खुदा के मंसूबे पर ईमान लाई। अगर 38वीं आयत पढ़े तो लिखा, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन, तेरे कॉल के मुताबिक हो। गौर से सुनिए, हम में से कितने लोग हैं, जब आप देखिए, इस मुकस्सा मरियम उस वक्त कुंवारी थी, और उस वक्त जब, गौर से सुनिए, जब उसकी किसी मर्द के साथ कोई वाकफियत नहीं थी, उस वक्त एक बच्चे का पैदा होना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि सोसाइटी के अंदर
ये बात थी कि अगर कोई कुंवारी हामला हो जाएगी तो उसको पत्थरों के साथ संसार किया जाएगा। अगर आप इस्तिश्ना की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा कि यहूदियों के अंदर ये क्या था, एक रवायत थी कि अगर कोई कुंवारी हामला होगी तो उसको पत्थरों के साथ संसार किया जाएगा। अब उस बच्ची को इस बात पर उसको पता है कि मेरे पास अगर किसी को ये बात पता चलेगी तो मुझे पत्थरों से संसार कर दिया जाएगा। वो अपना फ्यूचर देख रही है कि मुझे किस तरह लोग मार सकते हैं, लेकिन उसको ये पता है कि लोगों की बातों से ज्यादा मुझे खुदा के मंसूबे पर ईमान लाना। बड़ी दफा हम गौर से सुनिएगा, लोगों से डरते हुए खुदा के मंसूबों पर ईमान नहीं लाते, हम खुदा के मंसूबों पर काम नहीं करते। उसको पता है कि आगे मेरे लिए सवाल है, आगे मुझसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आगे मुझसे ये पूछा जाएगा कि ये बच्चा किस तरह पैदा हुआ है, इस बच्चे का बाप कौन है, ये किस तरह मरियम खुद कह रही है ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा। जब उससे क्वेश्चन किया जाएगा वो किस तरह आंसर करेगी। लेकिन वो इस बात को डरते हुए कि लोग मुझे क्या कहेंगे, सोसाइटी मुझे क्या करेगी, मेरा गांव मुझे क्या कहेगा, मेरा शहर मुझे क्या कहेगा, वो इन बातों से बढ़कर वो खुदा के मंसूबे पर ईमान लाई। उसने कहा मेरे लिए ऐसा ही हो जैसा तू चाह रहा है। उसके अंदर कोई भी खौफ नहीं है, उसके अंदर कोई भी शक नहीं है। उसका किरदार गौर से सुनिए, 15 साल की एक बच्ची का बाकमाल है क्रिसमस के अंदर। मुकद्दसा मरियम का किरदार, द कैरेक्टर ऑफ सेंट मैरी, गौर से सुनिए। उसने खुदा के कलाम पर ईमान लाई है। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब है आपने खुदा पर उस वक्त भी भरोसा करना है जब आपने अगले दिन नहीं देख रहे। मुकद्दसा मरियम अपने अगले दिन नहीं देख रही कि क्या क्वेश्चन होंगे मुझसे, कि लोग मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। वो खुदा के कलाम पर ईमान लाई है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान इसे नहीं कहते, गौर से सुनिए, ईमान इसे नहीं कहते कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मुझसे लोग, मैं किस तरह जिंदा रहूंगा। ईमान इसे कहते हैं कि खुदावंद मेरे आने वाले दिनों को भी संभालने की कुदरत रखता है। हमें बड़ी दफा उसका ईमान काबिले सिताइश है। मुकद्दसा मरियम का ईमान काबिले सिताइश है। और सुनिएगा, उसका ईमान इस कदर काबिले सिताइश है कि वो खुदा के भरोसे पर ईमान लाई है। हम में से कितने लोग हैं जब आने वाले दिन ना देखते हो लेकिन वो फिर भी खुदावंद के मंसूबों पर ईमान लाएं और वो ये कहें कि खुदावंद मेरे लिए बड़ा काम करेगा, खुदा मेरे लिए आसमान को खोलेगा, खुदा मेरे लिए मेरा रोशन मुस्तकबिल होगा। आप लोगों से डरते हुए बड़ी दफा इस और ये बच्ची जो 15 साल की है ये रिजेक्ट भी कर सकती है इनविटेशन को, ये रद्द भी कर सकती है इनविटेशन को, लेकिन इसने इनविटेशन को, खुदा की दावत को रद्द नहीं किया। इसने खुदा के पैगाम को कबूल किया है। गौर से सुनिए, खुदा के पैगाम को कबूल करने वाले हमेशा बाबरकत होते हैं। खुदा के कलाम को कबूल करके उस पर अमल करने वाले हमेशा जिंदगी के अंदर तरक्की करते हैं। और जो लोग सुनते हैं खाली और अमल नहीं करते, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। ईमान से सुनिए, ईमान हम बड़ी दफा हम
आंखों से चलते हैं खुदा के साथ। हम देखते हैं ये यहाँ खर्च करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, अच्छा ये खुदा के लिए है। ये ईमान नहीं है, इसे फेथ नहीं बोलते। इसको आप अपने सुनिएगा, मुकद्दसा मरियम ने आने वाले दिनों की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या होगा। उसने कहा तेरे कौल के मुताबिक मेरे साथ हो। हम से कितने लोग हैं जो खुदा के पैगाम पर ईमान लाते हैं। मुकद्दसा मरियम ईमान लाई, और उसके आम में से कितने लोग हैं, कलीसिया के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के आने वाले मंसूबों पर ईमान रखते हैं। अपना हाथ खड़ा करें। शाबाश। आप अपनी जिंदगी के आने वाले मंसूबों पर ईमान रखते हैं। सुनिए कितना मुश्किल होगा उसके लिए ये कलाम को कबूल करना, क्योंकि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कुंवारी हामला हो। ये सुनने में बात नहीं आई, ऐसी बात हुई नहीं थी पहले कभी। ऐसे हुआ था पहले? बोलिए जरा। हाँ, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने फलाने से दुआ की, मुझे शिफा हो गई। ये एक छोटी गवाही है, क्योंकि इससे पहले भी आंखों वालों को शिफा हुई है। लेकिन इस कुंवारी से पहले कोई कुंवारी हामला नहीं हुई थी। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल सेट कर रही है कि खुदा के कलाम पर किस तरह भरोसा करना है जब कोई काम नहीं हुआ। अब में से कितने लोग हैं जब आपसे सारी दुनिया डिसएग्री हो, लेकिन आप खुदा के साथ अलाइनमेंट में हो, और आप ये कहें कि सारी दुनिया भी मेरी मुखालफत करे, मैं खुदा के साथ जुड़ा रहूंगा और खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा, और मैं खुदा पर उम्मीद करना नहीं छोड़ूंगा। मुकद्दसा मरियम ने उस कलाम को कबूल करके उस पर आमीन बोला। और सुनिए उसको फजल दिया गया। पढ़ते हैं ये थोड़ा सा सुनिए, मेरी तरफ देखिए, पढ़ते फरिश्ता उसको क्या कहता है। जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ। फजल किसे कहते हैं? सुनिए, गौर से सुनिए। फजल किसे कहते हैं? जिस पर फजल हुआ। फजल किसे कहते हैं? हम पर फजल किसे कहते हैं? आप में से कोई बयान कर सकता है फजल किसे कहते हैं? फजल उसे कहते हैं कि जिन चीज़ों के हम हकदार नहीं होते, लेकिन खुदा उन चीज़ों को हमें अपनी रहमत से देता है। हमें अपनी रहमत से देता है। सुनिएगा, फरिश्ते ने आकर तुझ पर फजल हुआ है, तुझ पर ग्रेस हुआ है। खुदा का फजल तुझ पर इसलिए हुआ है, तुझ पर ग्रेस फजल हो गया है। अगर तू अपनी सुनिएगा, मुकद्दसा मरियम को इसलिए चुना गया कि उस पर फजल हुआ। हमें खुदा इसलिए चुनता है कि हम पर फजल होता है, वरना हमारी कोई भी काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे खुदा खुश हो। खुदा हमसे कुछ वक्त खुश होता है, वो हमें अपने फजल के जरिया से माफ भी करता है और कबूल भी करता है। और खुदा ने उस पर फजल किया। जब फजल होता है तो बड़ी चीजें पैदा होती हैं। यहाँ पर फजल हो रहा है और मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह को पैदा कर रही है। जब किसी भी इंसान पर फजल होता है तो वो बड़ी बड़ी चीजें खुदा उसके जरिए से करवाता है और पैदा होती है। जब मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ
تو यीशु बेबी उसके पेट पर, उसके पेट के अंदर था। जब हम पर फजल होता है तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी के जरिए से बहुत से लोगों को बदलता है। आमीन। तो सुनिएगा, दूसरा पॉइंट, मरियम खुदा की मर्जी की ताबियादारी करती है। क्या करती है? हाँ, जिनके पास 38वीं आयत पढ़ते हैं हम फिर दोबारा से। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे क्या हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उसने, मुकद्दसा मरियम ने ताबियादारी की, उस कलाम की, पहले ईमान लाई और फिर ताबियादारी की, और ताबियादारी की। उसने कहा, ऐसा ही हो मेरे साथ जैसा तू कह रहा है, मेरे साथ वही हो जो तू कह रहा है, जैसा तू चाह रहा है, जिस तरह खुदा कह रहा है वैसा ही हो। मुकद्दसा मरियम का रोल देखिए कैसा है कि वो कह रही, वो अपने आप को पेश कर रही है। अपने आप को जब हम पेश करते हैं, खुदा हमें इस्तेमाल करता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक इलाका था और उसके अंदर कुएं का पानी गंदा था, और वहां पर एक बुजुर्ग कुएं के पास बैठा करता था, और एक छोटी बच्ची थी 15-16 साल की, और वो सुनिएगा, और वो आकर वहां कहती, काश के सबको साफ पानी मिले उस कुएं के पास आकर। क्या कहती है? बादशाह ने अपने कोर्ट से एक आर्डर जारी किया कि जो मेरे महल के अंदर आएगा, मैं इनके इलाका के अंदर से ये कुएं का पानी साफ करवा दूंगा, और किसी गिफ्ट के साथ कोई आएगा, बड़े गिफ्ट के साथ। सब लोगों ने देखा और सब लोग डर गए, कहते हमारे पास तो कीमती गिफ्ट ही नहीं है। और वो गरीब बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, और उसके पास भी कोई कीमती गिफ्ट नहीं था। लेकिन बादशाह का फरमान ये था कि जो कोई कीमती गिफ्ट के साथ मेरे महल में आएगा और अच्छे कपड़े पहन के आएगा, मैं इनके इलाका का पानी ठीक कर दूंगा। अब बुजुर्ग सुनिएगा, बुजुर्ग देख रहा था, बुजुर्ग सारे इलाका के लोगों को जानता था, और कभी भी किसी ने आकर कुएं के पास ये नहीं कहा था कि काश के सारे लोग साफ पानी पिए। और बादशाह ने ऑर्डर जारी किया कि जो कोई सोने के गिफ्ट लेकर मेरे महल में आएगा, अच्छे कपड़े पहन कर आएगा, मैं इनके इलाके का कुएं का पानी क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। इधर देखिए, सब लोग देख रहे हैं, और सब लोगों के पास क्योंकि गिफ्ट नहीं था, तो उस बुजुर्ग ने उस छोटी बच्ची को जो 15 साल की थी, उसको बोला, बेटा तू बादशाह के महल में जा, और जा। उसने कहा, मेरे पास अंकल जी कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए बादशाह के महल में। उसने कहा, मैं बेटा तुझे कहता तू जा, तेरे पास, सुनिएगा, तेरे पास अगरचे कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे पास एक अच्छा दिल है, और अच्छे दिल की वजह से बादशाह तुझे लाइक करेगा। उसने कहा, बादशाह मुझे किस तरह लाइक? उसने कहा, तेरे पास लोगों के लिए दिल है कि काश के सारे लोग अच्छा पानी पिए। उसने कहा, जा। और जब वो, सुनिए, जब वो बादशाह के महल की तरफ जाना शुरू हुई, तो सारे लोग गांव के निकल कर, पता उसको क्या कह रहे थे? मजाक कर रहे थे, कह रहे इसके कपड़े भी सही नहीं है, इसके पास गिफ्ट भी नहीं है, ये किस तरह जाकर बादशाह को खुश करेगी। इधर देखिए मेरी तरफ, वो लोग कह रहे थे ये किस तरह जाके बादशाह को खुश करेंगे, क्योंकि इसके पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा सोने की कोई चीज है, ये किस तरह बादशाह को खुश करेगी। और सुनिए, सारे लोग उस पर हंस रहे थे। और जब वो महल के अंदर एंटर हुई, तो उसने फील किया कि मैं इस लायक तो नहीं हूं इस महल में आ सकूं। बादशाह ने उसको बुलाया। बादशाह ने कहा, तू यहां क्या लेने आई है? उसने कहा, बादशाह हमारे गांव का पानी
ठीक नहीं है। तो उसने कहा मैंने तो फरमान जारी किया था, तूने नहीं सुना था कि जो गिफ्ट लेके आएगा मैं इनके इलाका का पानी ठीक कर दूंगा। उसने कहा बादशाह मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास ये ख्वाहिश है मेरी कि इलाके के सारे लोग पानी अच्छा पिएं। उसने कहा तेरा दिल ठीक है, इससे बड़ा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं तेरे इलाके का पानी ठीक कर दूंगा। गौर से सुनिए, वो इस काबिल नहीं थी कि बादशाह के महल में जा सके, क्योंकि उसके पास कोई भी गिफ्ट नहीं था, ना साफ कपड़े भी थे, लेकिन उसका दिल अच्छा था। गौर से सुनिए, मैं आपको बताऊं, हम अपने स्टेटस की वजह से खुदा को खुश नहीं कर सकते। ये खुदा का फजल है जो हमें अपने महल में दाखिल करता है। मुकस्सम मरियम, सुनिएगा, मुकस्सम मरियम पर फजल हुआ है, ग्रेस हुआ है। उसको बादशाह ने बुलाया है अपने महल में, और खुदा बादशाह ने उसका दिल चेक किया है और उसको पता क्या बोला है, तू तेरे बेटा होगा, और वो पता कौन कहलाएगा, वो बुजुर्ग होगा और वो दुनिया को बचाएगा। जिस तरह सुनिए वो बच्ची महल में जाकर सिफारिश करती है और उस इलाके के लोग अच्छा पानी पीते हैं, इसी तरह मुकस्सा मरियम को चुना गया कि उसके बेटा हो और उसके ज़रिए से सारी दुनिया निजात पाए। उसको हमें खुदा हमारी एबिलिटी की बना पर नहीं चुनता। मैंने इधर देखो, हमें खुदा हमारी एबिलिटी की बना पर नहीं चुनता। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिसमस मनाने के लायक हैं? एक भी नहीं है। क्रिसमस मनाने के हम एक भी लायक नहीं है, क्योंकि हम खुदावंद के महल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे दिल गंदे थे, हमारी ज़ुबान गंदी थी, हमारी सोचें गंदी थी। उसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से माफ़ किया और हमें क्रिसमस मनाने की कुव्वत दी और ताकत दी। आमीन। सुनिए, हमारे पास अच्छा दिल होना तो खुदा हमें अपने ग्रेस से भर देता है। ये बच्ची महल में इसको बादशाह के पास ले जाने के लिए इसके पास कुछ है था? हाँ, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास कोई चीज़ है खुदा के पास ले जाने के लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावंद को हमें अपना अच्छा दिल देना है। खुदावंद हमें वेलकम करेगा और हमारी ज़िंदगी के सारे गुनाह और बदियाँ और नाराज़गियाँ और गुनाह सारे मिट जाएंगे और हम उसकी जलाल तक पहुँचेंगे। आमीन।